A very pleasant evening, dear parents, students, and all the participants. It's truly said if you just communicate, you can just get by. But if you communicate skillfully, you can work miracles. It is very important for every student nowadays to improve and polish their communication skills. So, I welcome you all on behalf of Kamal Public Senior Secondary School and St. Peter's Convent to this amazing webinar on the topic communication skills. Now, I would humbly invite our resource person for the day, Mr. Lucky Pushrat, who is a renowned professional speaker in the field of personal management and communication skills. And currently, he is the director of Mavericks India Solutions, a learning and development company. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank With you the very hope, much. welcome, sir. With the hope Thank of you. an informative session ahead, I now Right. request our esteemed guest to help guide our students who are the attendees for the day to give some tips to improve their communication skills and improve their social anxiety. Sir, over to Right. you. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, good afternoon, everybody, and welcome to this awesome webinar, which is on a very important topic. And the topic is communication skills. I'm fortunate enough that I've been teaching this specific subject as well as training people on this for past 2 decades. And my observation is that out of thousands of words you would have heard in English dictionary, the world's most powerful word is communication. Communication is so deep, is so in depth, that if you start working on communication skills, slowly and gradually it will become your superpower. You'll get supercharged to observe society on this basis, and then you will end up making less mistakes. अगर हम communication skills पर काम करेंगे, तो slowly and gradually communication skills will become so powerful with us that we'll start observing society on the basis of the rules of communication. To me, this specific word communication, when I've understood this word, 15 years ago, to me it was an eye opener. मुझे ऐसा लगा कि दुनिया ऐसे भी चलती है, ऐसे भी काम होते हैं, लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी बात की जा सकती है। क्या बात ऐसे भी की जा सकती है बिना इन्वॉल्व हुए? अगर मैं बिल्कुल सीधा बैठ के आपसे बात करता रहूं और यूं सिर हिलाता रहूं और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से बोलूं, ऐसे भी बात हो सकती है। और बात ऐसे भी हो सकती है वेयर आई बीन मूविंग हैंड्स, personifying my words, using my gestures to control the communication. तो जो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, इसमें बच्चों आप बहुत सारी चीजें सीखोगे. The duration is 55 minutes to 60 minutes, and I believe that you'll end up becoming very good communicators. And this is stage 1 of communication, the basics of communication. पर इसको ही सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना ज्यादा कामयाब हो सकता हूं, मैं कितना कम कामयाब हूं, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं लाइफ में. तो अब मैं आपको कुछ अपनी स्लाइड्स दिखाऊंगा, कुछ कंटेंट दिखाऊंगा, एंड फ्रॉम दैट कंटेंट यू कैन जज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कम्युनिकेशन इज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वर्ड. इस दुनिया में अगर हजारों शब्द हैं तो टॉप पे
सबसे मजबूत और पावरफुल दावेदार है कम्युनिकेशन। अब मैं आपको अपने कंटेंट की तरफ लेके जा रहा हूं और कंटेंट स्टार्ट करेंगे। So I'm opening the first slide now. ये मेरी कंपनी का नाम है मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन और आप बहुत ब्यूटीफुली देख सकते हैं नीचे एक पंच लाइन है, रेज योर स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग थिंग्स। इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ भी करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, पर उसमें आपके स्टैंडर्ड्स नीड टू बी शोकेस्ड, वो नजर आने चाहिए। आप अगर एक कुर्सी पर भी बैठते हैं तो आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप एक कुर्सी पर बैठे हैं तो आप अपना एक इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं, आप अपना एक स्टैंडर्ड छोड़ के जाते हैं। तो हमारा बिलीफ है रेज योर स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग थिंग्स। ये कुछ मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि मैं फाउंडर हूं मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन का, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंपनी। मैं 16 साल से ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं लोगों के साथ और 2000 प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं कंडक्ट कर चुका हूं। एंड लेट्स हेड टुवर्ड्स कम्युनिकेशन स्किल्स। इज इट विजिबल टू ऑल नाउ? Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. We are able to understand. ये सबको नजर आ रही है स्लाइड्स? Yes, sir. We are able to see all the slides, sir. मेरी स्लाइड सबको नजर आ रही है? Sir, we are able to see the slides. We are able, sir. You can proceed further, sir. Okay. Now see, कम्युनिकेशन स्किल्स जब आप सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ इस पिक्चर की तरह हो जाएगी, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपको पता चल जाएगा लाइफ में कि आप कितने फ्लॉज, कितने फॉल्स लाइफ में कर चुके हैं, व्हाट मिस्टेक्स यू कमिटेड इन द पास्ट, जो आज आप लर्न करेंगे और अपनी प्रेजेंट लाइफ में और अपकमिंग लाइफ में यू विल टेक प्रॉपर मेजर्स बिफोर कमिटिंग द एरर्स। सो लेट्स कम टू स्लाइड नंबर 1. ये सेशन एट अ ग्लांस है, विल कवर अप, टेक अप 9 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज व्यूज ऑफ स्टीव जॉब्स ऑन कम्युनिकेशन. Second point is Professor Albert Mehrabian's rule of communication. Third point है the communication process. Fourth point है cause of a failed life. Fifth point है active listening in the class. बच्चे कैसे उसे कर सकते हैं. Sixth point है how to think like a communicator. Communicator की तरह सोचा कैसे जाता है. 7th point है purpose के साथ जिंदगी कैसे जी जाती है, कि कम्युनिकेशन आपको सिखाती है. 8th point is the learning curve and 9th point is close to context, which is something very important that I'm going to share with you in the last slide. So let's come to slide number 1. Lao Holtz once said, friends, it is not the load that breaks you down, it's the way you carry it. The life is very beautiful if you know how to live it. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में बहुत खूबसूरत लोग हैं. There is no competition if you know people's management, if you know change management, and that is only possible when you know communication. So it's not the load that breaks you down, it's the way you carry that load. Complaints तभी आती हैं जब हमें प्रॉब्लम में से निकलने के तरीके नहीं आते. मुझसे जब कई लोग पूछते हैं ना, सर मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने बड़ा सा जवाब देता हूं. आई ऑलवेज टेल इट टू देम, इंक्रीज योर ऑप्शंस. एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता.
But just because we do not know most solutions, we stick to one problem, one solution, and then we suffer. But once you'll become a communicator, you'll start understanding the power of communication, the way it can sort all your problems. एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं बच्चों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट थिंग इज, बच्चों आप जरा सोच के देखिए, every human being in this world is having 24 hours. सबके पास 24 घंटे हैं. In spite of it, it happens that there are certain people, those who are far more successful than others. You know what is the reason behind it? The reason is they understand communication skills at an early age. Under the same set of circumstances, there are certain people, those who break records. And there are others, those who break themselves. And the reason is communication. So it is not the load that breaks you down, it's the way you carry that load. Let's move on to the slide number 2. Steve Jobs, the founder of Apple Computers. ये बात सबको पता होगी कि Steve Jobs was running Apple Computers. Am I right on this? स्टीव जॉब्स, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको स्टीव जॉब्स के माध्यम से समझाना चाहता हूं. एप्पल कंप्यूटर्स इज वर्ल्ड्स टॉप कंपनी इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, एप्पल कम्युनिकेट्स. और कैसे करते हैं मैं आज आपको समझाता हूं. अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे अच्छे मोबाइल फोन्स किस कंपनी के हैं, तो आप कहेंगे सर एप्पल के. सबसे अच्छे लैपटॉप्स किस कंपनी के हैं, तो आप कहेंगे सर मैकबुक फ्रॉम एप्पल. तब बड़े ध्यान से आप बात सुनिए, एप्पल कैसे कम्युनिकेट करता है. एप्पल मेक्स वर्ल्ड्स बेस्ट मोबाइल फोन्स फ्रेंड्स, एंड एप्पल इज नॉट अ मोबाइल कंपनी, इट्स अ कंप्यूटर कंपनी. Being a computer company, they make world's best mobile phones. It is so because they have mastered the art of communication. एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा क्लास में जाके कंसंट्रेशन फोकस के साथ पढ़ता है. He comes out with flying colors. You know why? Because he has mastered communication. तो स्टीव जॉब्स के व्यूज क्या थे कम्युनिकेशन के ऊपर? He used to say that communication is a profession of all the professions. इस दुनिया में अगर कोई प्रोफेशन है तो वो है कम्युनिकेशन. इस दुनिया में अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है कम्युनिकेशन. So communication is the profession of all the professions and communication is the subject of all the subjects. आप जिंदगी भर याद रखिएगा, इफ द टीचर्स आर लिसनिंग टू मी, आपका प्रोफेशन टीचिंग नहीं है, आपका प्रोफेशन है कम्युनिकेशन. आप सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, आप क्लास में जाके कम्युनिकेट करते हैं. एंड दैट विल अंडरस्टैंड टुडे इन दिस वेबिनार. नेक्स्ट पॉइंट स्टीव जॉब्स क्या कहते थे? वो कहते थे इफ बिकमिंग अ कम्युनिकेटर वुड हैव बीन दैट सिंपल, everybody in the world would have become an excellent communicator. सब लोग नहीं होते. Only 1% people, they become communicators and then they are employers, then they are successful people, then they are living legends. So it is not easy to become a communicator, but yes, if you keep working on the basic fundamentals of communication, you'll start raising your standards to uplift your potential. You'll start brushing up your belief system once you start working on communication. So in 3 points के साथ I'll move on. Friends, 1964 में प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबिया, जिनकी पिक्चर स्क्रीन पे है, इन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च में का मीडियम था, बेस था कि क्यों ऐसा होता है कुछ बच्चे, कुछ लोग
कम पढ़े लिखे होते हैं, they have never been to the school, they have less studied, they are less fortunate, they are not from good families, but they come out as successful. और कुछ बच्चे होते हैं, they are from very good families, they are more fortunate, and still they are, less successful. A tug of war था between more successful and less successful people. क्यों ऐसा होता है? तो प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबिया ने कंक्लूड किया, इसका बेस है जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स जानते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द पोटेंशियल, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं जानते हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देयर वीकनेसेस, सारी जिंदगी वो अपनी वीकनेसेस को ही मीडियम बना के जिंदगी जीते हैं, एंड अल्टीमेटली दे से द वर्ल्ड इज अ बैड प्लेस टू लिव इन. सो प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबिया से जब पूछा गया कि सर कम्युनिकेशन है क्या, वो कहते कम्युनिकेशन है जस्टिफिकेशन ऑफ योर प्रोफेशन. तुम जिस प्रोफेशन में हो ना, वो तुम्हारे स्ट्रक्चर से, तुम्हारी आभा से, तुम्हारे बात करने के तरीके से, तुम्हारे खड़े होने के तरीके से नजर आना चाहिए. इफ यू आर अ क्रिकेटर, यू शुड बी स्लिम, you should be enthusiastic, you should be persistent. If you are a teacher, you should be presentable, you should have a likable personality, you should know the concepts thoroughly so that you can clarify everything to the students. तो प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबिया ने कहा कि अगर आप अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करते हैं and you love your profession, you are a communicator. तो उनसे लोगों ने पूछा सर इसकी कोई डेफिनेशन तो होगी, तो उन्होंने दो बहुत प्यारी डेफिनेशंस दी. पहली डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन आप ऐसे सेंड करेंगे जैसे आप खुद रिसीव करना चाहते हैं. वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, ग्रास्पेबल, अंडरस्टैंडेबल, सुन के अच्छा लगे, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, जिसमें ये ना लगे कि आई हैव टू अप्लाई टू मच ऑफ ब्रेन मूविंग इनटू इट एंड देन यू हैव I'll understand it. Einstein used to say, the best teacher is one who can simplify his classes for a person who is a housekeeping department. Even he can understand what is going on in the class. So simplified. तो बच्चों को ना अच्छा लगता है, वो come on. एक डॉक्टर है, अपने मरीज को इस प्रकार देखता है कि वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, तो 80% मरीज तो उनके बिहेवियर से ठीक हो जाता है. And if it's a money mincing doctor, friends, जो कम्युनिकेशन आपकी देख रहा होता है वो सब जानता है. ये पब्लिक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानती है. If you are genuine, if you are justifying a profession, when you know you are justifying a profession, people knows it. When you know you are not justifying a profession, people knows it, and then you cannot prove it. एक बच्चा है, सारा दिन वो टाइम वेस्ट करता है, बाहर गलियों में घूमता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सारा दिन मोबाइल फोन पे लगा रहता है, एंड देन ही सेज मेरे मार्क्स नहीं आते, मेरी क्लास में बच्चे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज ही इज अनेबल टू जस्टिफाई his student life. So communication is so in depth. So पहले मैं एक पॉइंट जो बता रहा हूं आपको वो ये है कि एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऐसे दीजिए जैसे आप रिसीव करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन में आप वो सब कुछ दीजिए जो आपको लगता है कि किसी को जो मेरी बात सुन रहा है उसे वो चाहिए होगा. एंड देन अ रेवोल्यूशन स्ट्राइक्ड इनटू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज बिकम अ बेटर प्लेस आफ्टर इट. इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करूंगा. इट्स अ लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला. सब बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं ऑन फेसबुक लाइव ऑल अक्रॉस, वो बड़े ध्यान से सुने. ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदलने वाला है आज. अगर आपको लगता है that you are scoring 70% marks and you want to score 95% and above, pay attention to this formula. अगर आप सम करें 7, 38 और 55 को, इस समिंग अप है 100%. Am I right on this? 100%.
Am I audible to everyone? Yes, Am I sir, you're audible to audible, sir. everyone? Yes, sir. Yes, sir. You're audible, Okay, sir. okay, Yes, sir. okay, Yes, okay, sir. okay. Okay. So 7:38:55. और मैं आज टीचर्स को ही बताना चाहता हूं कि इट्स एन आई ओपनर फॉर मी 15 years ago। और आज भी जब मैं इस फॉर्मूला को सोचता हूं बैठ के, मेंटली आई स्टॉप। ये आपके प्रोफेशन के लिए, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए, ये किसी भी दुनिया के प्रोफेशन के लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपकी जो कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स, उसके दो पार्ट्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल है वर्ड्स। इस टाइम मेरे वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं और मेरे एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं। तो जो मेरे वर्ड्स हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है, और जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा हाव भाव है, वो मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ ना बोलूं और ऐसे करके बैठ जाऊं, तो मैं नॉन वर्बली आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कई बार बहुत सीनियर ऑफिशियल से मिलता हूं, दे आर सो बिजी, उनके पास टाइम नहीं होता मिलने का। जब कहो ना गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे कहते, तो नॉन वर्बली वो बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं, आई डू नॉट हैव टाइम। तो 7% है आपके वर्ड्स जो आप बोलते हैं, और रेस्ट 38 + 55 इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट्स एन आई ओपनर फ्रेंड्स। जो आपके शब्द हैं वो आपकी जिंदगी में सिर्फ 7% आपकी उपलब्धि में आपकी मदद करते हैं, और 93% है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका स्ट्रक्चर, क्या आपकी प्रेजेंटेबल बॉडी है, क्या आपका प्रेजेंटेबल चेहरा है, क्या आप अपने प्रोफेशन के लिए ड्रेसअप होते हैं। अब जो 38% है वो है आपकी टोन, जिस प्रकार से आपके वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, टोन। इट्स नॉट वर्ड्स, टोन। You can say big words in a smoother tone. Sometimes you speak more and convey less, and sometimes you speak less and convey more. When tone is powerful, when tone is polite. जब तो मेरी बात बड़े ध्यान से आपने सुननी है। मैं कुछ मदर से पेरेंट्स को जब काउंसलिंग करता हूं तो वो कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को डांटना पड़ता है। फ्रेंड्स, मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बार बार अपने बच्चे को डांटेंगे, स्क्रू करेंगे, अ डे विल कम वेरी सून व्हेन यू स्टॉप लिसनिंग टू यू। और आप 38% अपनी टोन पोलाइट रख के उसे बड़ी बात कहें। टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आपकी बात नहीं सुन रहा, बहुत नटोरियस है, क्लास में बहुत शोर मचा रहा है, उधम मचा रहा है, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू टीचर्स लेक्चर्स, आपने डांटना नहीं है। मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट, stern mouth, and say the right words politely. जो वो impact है that is going to remain on his brain forever. जब हम shout करते हैं ना, we go out of control, और लोग सब जानते हैं ये खुद के कंट्रोल में नहीं है। So there is no need. मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी किसी को बात समझानी और वो व्यक्ति बात नहीं समझता, ये घर में भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, आपने you have to give him a complete eye look, eye to eye contact, and then you have to keep your face stern and say that big word politely. If you won't study, you won't get successful in life, and that's for sure. Rather than shouting and making mess of your personality and making yourself, non-listenable to the student or the person who is next to you, 7% are your